पैसे वसूल करने के लिए, और पैसे वसूल करके यहाँ से दिल्ली जाता, दिल्ली से फिर आरएसएस वर्कर को बांटा जाता है। क्योंकि आज तक आरएसएस वर्कर्स ने या आरएसएस के मुखिया ने अपना मेंबरशिप कितना है नहीं बताया। आपको मालूम है कितने मेंबर है उनके, कितने लोग मेंबर्स बने हैं? आपको मालूम है आरएसएस का रजिस्टर कहाँ हुआ, रजिस्टर नंबर क्या है? किसी को मालूम है? आज तक उन्होंने किसी को नहीं बताया। বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলো থেকে মানুষের টাকা লুট করে পৌঁছানো হয় প্রথমে দিল্লিতে, বন্টন করা হয় আরএসএস কর্মীদের মধ্যে। এজন্যই আরএসএস সদস্য সংখ্যা আজ পর্যন্ত কেউ জানে না, কারো কাছে রেজিস্টার নেই কোনো তথ্য। নির্বাচনী জনসভায় চাঞ্চল্যকর দাবি মল্লিকার্জুন খাড়গের। धर्म के नाम पर तोड़ने का, हिंदू मुसलमानों में झगड़ा लगाने का, दलितों को कुचल देने का, यही काम मोदी जी और आरएसएस कर रहे हैं। भाइयों, मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, अगर आप मोदी को फॉलो करेंगे, हेमंत बिस्वास को फॉलो करेंगे, देश का नुकसान है। और कांग्रेस राहुल गांधी के उसूलों पे अगर चलेंगे, हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के उसूलों पे अगर हम चलेंगे, निश्चित रूप से देश आगे बढ़ता है। आगे बढ़ा भी है पहले और भी आगे बढ़ता है। अब की बार 400 পার বলেছিলেন অহংকারী মোদি, কিন্তু থামতে হয়েছে 220-তে। লোকসভা ভোটের এই তথ্য সামনে এনে মোদিকে উপহাস করলেন মল্লিকার্জুন খাড়গে। কংগ্রেসের লড়ে 2/3 মেজরিটিতে পৌঁছাতে দেয়নি বিজেপিকে, না হলে সংবিধান বদলে দেওয়ার পরিকল্পনা ছিল। বড় খুলাসা করে কংগ্রেস প্রার্থীদের পালে হাওয়া ফিরাতে প্রচেষ্টা চালালেন বর্ষিয়ান দক্ষিণী রাজনীতিক মল্লিকার্জুন খাড়গে। हम उनको 2/3 मेजॉरिटी नहीं आने दिए, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने के लिए उनको नहीं हुआ, नहीं तो संविधान बदलने वाले थे। इस बार 400 का कौन बोले? मोदी ने। अरे नहीं, इस बार 400 पर फिर आए तो 220 में। तो इतनी घमंड किस सरकार में होती है, वो सरकार बहुत जल्दी गिरती है। প্রচারের শেষ বেলায় দলীয় প্রার্থীদের পক্ষে প্রচারে বরাক উপত্যকায় পৌঁছে শ্রীভূমি জেলার আসিমগঞ্জে বিশাল জনসভা থেকে দক্ষিণ করিমগঞ্জের প্রার্থী আমিনুর রশিদ চৌধুরী, পাথারকান্দির কংগ্রেস প্রার্থী কার্তিক সেনা সিনহা এবং উত্তর করিমগঞ্জের প্রার্থী জাকারিয়া আহমদ পান্নার পক্ষে জোর প্রচার অভিযান চালিয়েছেন কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে। এদিন বক্তব্য রাখতে গিয়ে খাড়গে বলেন যে আরএসএস দেশের ঐক্য সম্প্রীতির জন্য হুমকি হয়ে উঠেছে, দেশকে ধর্মের নামে খণ্ড বিখণ্ড করতে চাইছে, তাদেরকে মানুষের টাকায় প্রতিপালন করছেন বিজেপি শাসিত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরা। দেশে জ্বালানির আকাল চলছে, এইসব নিয়ে মোদির কোনো চিন্তা নেই, কারণ ভোটের প্রচারে ব্যস্ত আছেন তিনি। শুধু পুরসভার ভোট ব্যতীত বাকি সব ভোটে দেখা যায় মোদির প্রচার দিয়ে বিজেপির প্রচারণা শুরু করা হয়। বিধানসভা ভোট এবং উপনির্বাচনও বাদ দেন না। এমন অবসর প্রধানমন্ত্রী এর আগে আর দেশ দেখেনি বলেও উল্লেখ করে কটাক্ষ করেন মল্লিকার্জুন খাড়গে। ক্ষমতার জন্য আজমলের সঙ্গেও গভীর সখ্যতা গড়ে উঠেছে বিজেপির। গালাগাল করা হচ্ছে গান্ধী পরিবারকে, অথচ ওরা ভুলে গেছে এই গান্ধী পরিবার দেশকে বাঁচিয়েছে, দেশের একতার জন্য গুলিবিদ্ধ হতে হয়েছে। আসিমগঞ্জের সভাতেও হিমন্ত পত্নীর 3 পাসপোর্ট ইস্যুকেও উস্কে দিয়েছেন খাড়গে। তিনি বলেন, আসামের লাখো বিঘা জমি দেশের আমিরদের মধ্যে বিলিয়ে দেওয়া হচ্ছে, অথচ রাজ্যের গরিব ভূমিহীনদের 1-2 বিঘা করে দেওয়া হলেও অন্তত আসামের 50,000 মানুষ মাথা গোঁজার ঠাঁইটুকু হয়ে যেত বলে মন্তব্য করে হিমন্ত বিশ্ব শর্মাকেও সমালোচনা করেছেন। এদিকে কংগ্রেসের মুরব্বী মল্লিকার্জুন খাড়গে বিজেপি এবং এআইইউডিএফ কে নিশানা করলেও রহস্যজনকভাবে দক্ষিণ করিমগঞ্জ আসনের সভা আয়োজন হয়েছে, অথচ সেই আসনে কংগ্রেস শক্ত প্রতিপক্ষ তৃণমূল কংগ্রেসকে নিয়ে একটু শব্দও কিন্তু তিনি উচ্চারণ না করায় রাজনৈতিক মহলে এ নিয়ে নানা চর্চা শুরু হয়েছে। অনেকের মতে ইন্ডিয়া জোটের অংশীদার টিএমসি কে রিল্যাক্স দিয়ে দেওয়ার নেপথ্যে রাজনৈতিক অন্য অঙ্ক রয়েছে কংগ্রেস সভাপতির, এমনটাই মনে করা হচ্ছে। गैस नहीं मिल रहा, पेट्रोल नहीं मिल रहा, डीजल नहीं मिल रहा, उसकी चिंता हमारे प्रधानमंत्री को नहीं। किसकी चिंता है? जीतना इलेक्शन, कांग्रेस को हराना, इसीलिए किससे भी दोस्ती करते हैं। अब आजकल इनसे भी दोस्ती कर रहे सुना, यूडीएफ क्या है? हाँ? अरे हमारे अजमल साहब है ना,
अजमल साहब से भी दोस्ती हो गई उनकी। अरे अजमल और उनकी दोस्ती इतनी गहरी हो गई है क्योंकि कांग्रेस को हराने के लिए। और अजमल जी बीजेपी के साथ जा, मैं तो कहूंगा अगर कोई भी कितना बड़ा भी दोस्त तुम्हारा होने दो, अगर अजमल को वोट दिए तो वो बीजेपी को वोट जाने वाला है, ये सोचना चाहिए। क्या अजमल चीफ मिनिस्टर बनने वाला है? क्या अजमल जी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं? क्या अजमल जी सेकुलर बनकर देश के संविधान को बचाने की शक्ति है उनमें? देश के संविधान को बचाने वाले कांग्रेस पार्टी है। हम तुम्हारे आशीर्वाद से हम उनको 2/3 मेजॉरिटी नहीं आने दिए, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने के लिए उनको नहीं हुआ, नहीं तो संविधान बदलने वाले थे। इस बार 400 पार, कौन बोले? मोदी ने। अरे नहीं, इस बार 400 पार, फिर आए तो 220 में। तो इतनी घमंड किस सरकार में होती है, वो सरकार बहुत जल्दी गिरती है। और उसी तरह से उनके चेले, या कौन, हमारे शर्मा, हेमंत शर्मा, उनके चेले हैं। अब कैसा गुरु वैसा चेला। गुरु तो 100 झूठ बोलता है, अब शिष्य भी 200 झूठ बोलना चाहिए, क्योंकि वो भी पहले बोले आपको नौकरियां देता हूं 2 करोड़, मोदी ने बोला नोटबंदी से आपको फायदा होगा, बोला किसानों को आमदनी डबल करूंगा, बोला या नहीं बोला? अरे सच बोलो भाई, बोला या नहीं बोला? बोला। आप क्यों नहीं पूछते भाई? हेमंत विश्वास को यहाँ आता है, वो पूछता है, क्या उनके दोस्त लोग आते हैं, पूछिए क्यों इतने झूठ बोले? कहाँ है तुम्हारे सालाना 2 करोड़ की नौकरी? कहाँ है नोटबंदी से फायदा? कहाँ है किसानों को दाम दुप्पट? ये ऐसे झूठ बोलने वाले आज तक आसाम में कोई एक बहुत बड़ा कारखाना या बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट, सैकड़ों एकड़ जमीन दूसरों को दे रहे हो, आज तक उन्होंने 1 लाख एकड़ के ऊपर जमीन अमीरों को बांटी है, दी है। अगर वही 1 लाख एकड़ 2-2 एकड़ भी अगर गरीबों में बांट देते तो 50,000 फैमिलीज अपने बलबूते पे ठहर के उनकी आर्थिक परिस्थिति बदलती थी, लेकिन उन्होंने वो नहीं किया। उन्होंने बुलाया अदानी को, उन्होंने बुलाया रामदेव को, उन्होंने बुलाया, उनको तो लिया और खुद भी लिया। मैं सुना 3-3 पासपोर्ट उनके घर में, गोल्डन पासपोर्ट, गोल्डन बोलते क्या है, गोल्डन पासपोर्ट, फिर वे कहते हैं ग्रीन पासपोर्ट, क्या वीआईपी क्या क्या पासपोर्ट है, उसके घर में सब पासपोर्ट मिल रहे। अरे आपको क्यों भाई, आप तो देश की सेवा और आसाम के जनता की सेवा करने के लिए आए थे, हुआ क्या? खुद की सेवा कर ले रहे, और करते करते कहां तक कि गांधी फैमिली को भी गालियां देती। अरे जो गांधी फैमिली देश को बचाई, देश के एकता के लिए गोली खाई, उनको आप गालियां देते हो। राहुल गांधी जी इस देश में देश जोड़ो आंदोलन में
चल के कश्मीर से कन्याकुमारी से कश्मीर तक चले। तुम सिर्फ हेलीकॉप्टर में फिरते हो और तुम्हारे मोदी जी को पूछो मत। सिर्फ अब वो म्युनिसिपैलिटी इलेक्शन में रहना बाकी है। सब इलेक्शन में आते हैं, एमएलए इलेक्शन में, एमपी इलेक्शन में, बाई इलेक्शन में और जिला पंचायत इलेक्शन में, मेयर के इलेक्शन में। अरे प्राइम मिनिस्टर का काम होता है देश के लिए आप पॉलिसी बनाओ, देश के इकोनॉमिक ढांचे को अच्छा करो और देश के लोगों की गरीबी हटाने का काम करो, लोगों का इनकम बढ़ाने का काम करो, पर कैपिटा इनकम बढ़ाकर ज्यादा करने का काम करो। ये सब छोड़े सिर्फ कहां इलेक्शन है पहला भाषण उनका, इलेक्शन डिक्लेयर होता 1 साल के बाद, इनका इलेक्शन प्रचार होता 1 दिन पहले ही। चुनाव चुनाव चुनाव, जनता की चिंता नहीं उनको।